بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کی زندگی مختلف مقامات پر مختلف قبیلوں سے بلکہ پورے یورپ کے صلیبیوں سے جنگ کرتے گزری اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اب صلاح الدین ایوبی کا سامنا ایک حبشی قبیلہ جو سوڈان میں تھا، وہاں مختلف ہر 9 سال بعد ایک لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی۔ اس لڑکی کا سفید فام یعنی گورا ہونا ضروری تھا۔ اب چونکہ وہ حبشی قبیلہ تھا، وہاں پر سفید رنگ کی لڑکیاں نہیں تھیں، تو وہ قبیلہ باہر سے لڑکیوں کو اٹھا کر لاتا تھا۔ اس قبیلے نے اس دفعہ جس لڑکی کو چنا وہ مصر کے اس وقت کے خلیفہ کے حرم میں رہنے والی ایک لونڈی تھی اور خلیفہ کے دل کے بڑے قریب تھی۔ تو اس لونڈی کو جب وہ اٹھا کر لے گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کچھ فوجی اور کچھ جوان بھیجے، جنہوں نے اس بت کو بھی ختم کر دیا جس کے قدموں میں قربان کیا جاتا تھا، اس پنڈت کو بھی ختم کر دیا، بلکہ اس کے بعد جب اس قبیلے کے لوگ لڑائی کرنے کے لیے آئے تو ان کو بھی عبرتناک شکست دے دی۔ ایوبی کا کہنا یہ تھا کہ لڑکی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کی عزت اور زندگی برابر ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا، خوفزدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہیں ہوئی تھی، دوسرا ان کا پنڈت مارا گیا تھا، تیسرا ان کے دیوتا کا بت اور گھر ہی تباہ کر دیا گیا، چوتھی مصیبت یہ ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں بھی شکست دی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان دیوتا کا بت توڑا ہے وہ کوئی بہت بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پنڈت کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پہلے تو یہ کہا کہ دیوتا کے مگرمچھ بھوکے ہیں، کیونکہ جس دیوتا کے پاس قربانی دی جاتی تھی اس مندر کے نیچے ایک جگہ بنی تھی جہاں پر جھیل سی تھی، اور اس جھیل میں مگرمچھ ہوتے تھے جو قربانی دی جاتی تھی بعد میں اس لڑکی کی کھوپڑی سکھا کر محفوظ کر لی جاتی تھی اور نچلا دھڑ جو تھا وہ مگرمچھوں کو ڈال دیا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا دیوتا کے مگرمچھ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ حبشیوں نے کئی بکریاں مگرمچھوں کے لیے بھیج دیں، ایک نے تو اونٹ بھی پنڈت کے حوالے کر دیا۔ یہ جانور کئی دنوں تک مگرمچھوں کی جھیل میں پھینکے جاتے رہے مگر قبیلے سے خوف ختم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پنڈت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور بتایا کہ اس نے دیوتاؤں تک تعلق قائم کیا ہے۔ دیوتاؤں نے اشارہ دیا چونکہ وقت پہ لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی، اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا کہ اب کم از کم 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پنڈت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا، قبیلے کے بہت سے نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا مصر سے 2 صلیبی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔ ادھر دوسری طرف رجب جو خلیفہ کا پرانا کمانڈر تھا اور ایوبی کے ڈر سے بھاگ کر فلسطین پہنچ گیا تھا۔ جب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا، اس کا سفر بہت لمبا اور خطرناک بھی تھا۔ اب سلطان ایوبی کی فوج کا باغی سالار تھا، اسے معلوم تھا سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی کے دستے پہرے دے رہے تھے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ تھے جن پر پانی، خوراک اور صلیبیوں کا دیا ہوا سارا سامان موجود تھا، باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے۔ اس سے 1 روز پہلے قبیلے کے پنڈت نے کہا تھا 2 سفید فام اور سوڈان کے باہر کی لڑکیوں کی قربانی دینی ضروری ہے۔ رجب سب سے پہلے
पंडित से मिला। पंडित ने उसके साथ 3 सफ़ेद फाम और बहुत ही हसीन व जमील लड़कियां देखीं तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए बेहतरीन थीं। उसने रजब से लड़कियों मुतालिक पूछा तो रजब ने उसे बताया वो उन्हें ख़ास मकसद के लिए अपने साथ लाया है। रजब लड़कियों को पहाड़ों के अंदर ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज और ख़ूबसूरत थी, 3 तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई थी। वहाँ रजब ने खैमे लगा दिए। लड़कियों को चोरी छुपे मौका महल देख के काहिरा में उन 2 आदमियों के हवाले करना था जिनके पते के बारे में सलीबियों ने उसे बताया था। लड़कियों के आराम का पूरा इंतज़ाम था। रजब ने वहाँ शराब का भी इंतज़ाम कर रखा था। रात उसने सफ़र से कामयाब लौटनी खुशी में जश्न मनाया। सलीबियों के मुहाफ़िज़ों ने भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आधी रात में मुहाफ़िज़ और उसके अपने चंद साथी जो पहले ही वहाँ मौजूद थे सो गए तो रजब एक लड़की का बाजू पकड़कर उसे अपने खैमे में ले जाने लगा। लड़की उसकी नीयत भांप गई। उसने कहा, मैं तवाइफ़ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलीब का फ़र्ज़ अदा करने आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बुराई नहीं कबूल करूँगी। रजब ने उसे हंसते हुए अपने खैमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़वा लिया। रजब ने जब कुछ छेड़खानी की तो लड़की दौड़ के अपने साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गई। उन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें गलत ना समझे। रजब को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी पाकबाज हो, बेहयाई तुम्हारा पेशा है। इस पेशे का इस्तेमाल हम वहाँ करती हैं जहाँ हमारे फ़र्ज़ के लिए ज़रूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अयाशी खातिर अयाशी नहीं किया करती। रजब उनकी कोई बात नहीं समझना चाहता था। आखिर लड़कियों ने उसे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफ़िज़ हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, उन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने उनकी ज़रूरत महसूस की तो हम उन्हें यहाँ रोक सकती हैं या ख़ुद यहाँ से उनके साथ वापस जा सकती हैं। रजब चुप हो गया मगर लग रहा था वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फ़लस्तीन से लाए हुए मुहाफ़िज़ों को वापस भेज दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त जब रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था, पंडित अपने 4 हबशियों के साथ आ गया। उसने सुडानी ज़बान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज़ हैं। उन्होंने 2 फ़रंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए बड़ी बेहतरीन हैं, इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब का दिमाग चकरा गया। उसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं, हमें इनसे बहुत से काम लेने हैं। इन्हीं के हाथों से तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। तुम झूठ बोल रहे हो, पंडित ने कहा। तुम इन लड़कियों को यहाँ अयाशी के लिए लाए हो। हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान कर देंगे। रजब ने बहुत समझाया मगर पंडित ने एक भी बात ना मानी। उसके दिमाग पे देवता सवार थे। उसने उठ के 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवताओं के लिए हैं। अंगोक कबीले की निजात इन दोनों लड़कियों के हाथ में। ये कहकर वो चला गया। रुक कर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश ना करना, तुम जानते हो हम तुम्हें फ़ौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियां सूडान की ज़बान नहीं समझती थी। हबशी पंडित ने उनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो उन्होंने रजब से पूछा, हबशी क्या कह रहा है? रजब ने उन्हें साफ साफ बता दिया, वो उन्हें कुर्बानी के लिए मांग रहा है। लड़कियों के पूछने पर उसने बताया, वो तुम्हारे सर काट कर खुश्क होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे जहाँ मगरमच्छ खा जाएंगे। लड़कियों का रंग उड़ गया। उन्होंने रजब से पूछा, उसने उन्हें बचाने के लिए क्या सोचा है? रजब ने जवाब दिया, मैंने उसे समझाने के लिए बहुत दलीलें दी हैं मगर उसने एक भी नहीं सुनी। मैं इन लोगों के रहम करम पर हूँ। मैं तो उन्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूँ। ये मेरी फ़ौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने अकीदे में इतने पक्के हैं, पहले देवताओं को खुश करेंगे फिर मेरी बात सुनेंगे। रजब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया वो उन्हें बचा नहीं सकेगा या उन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने पिछली रात रजब की नीयत भी देख ली थी, इससे वो उससे मायूस हो गई थी। रजब ने उन्हें रस्मी तसल्ली भी ना दी कि उन्हें बचा लेगा। लड़कियां खैमे में चली गईं। उन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और नतीजे पर पहुंची वो यहाँ रजब की आशी का ज़रिया बनने या हबशियों के देवताओं की भेंट चढ़ने के लिए नहीं आई। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने वहाँ से भागने का सोचा। भागकर फ़लस्तीन तक खैरियत से पहुँचना आसान काम नहीं था मगर और कोई रास्ता भी नहीं था। लड़कियां खूबसूरत और नहीं थीं बल्कि घुड़सवारी सिपा सालारी भी जानती थीं ताकि ज़रूरत पड़े तो अपना बचाव करें। उन्होंने फ़ैसला कर दिया वो यहाँ से भागकर फ़लस्तीन चली जाएंगी। वो रात खैरियत से गुजरी। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। क्या वो लड़कियाँ उस हबशी कबीले की से बच निकलने में कामयाब हुई या नहीं, इसके बारे में अगले हिस्से में बताया जाएगा।